Hello kids, welcome to grade 9 history class. Today we are discussing chapter 1 which is the French Revolution chapter. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे French Revolution का चैप्टर जो है हमारा chapter 1 and today's session is session 7. तो आज का सेशन है session number 7. So let's start with it. Before starting the session 7, let's recap what we have discussed in session 6. So we have discussed that how France abolishes monarchy and becomes a republic. So we have seen how Louis XVI, although he signed the constitution, but he also entered in a negotiation which was secret with the King of Prussia. And looking at that, the National Assembly, they declared war against Prussia and Austria. So a lot of people volunteered for this war, and what happened, people were very adamant that they have to fight this war because they saw this war as it is a fight with the king and aristocracies. So a lot of people used a lot of patriotic songs, and some of them were very famous patriotic songs. Then this war brought a lot of losses and economic difficulties to people, and still some of the people wanted to take it further. They wanted this revolution they wanted to take it further, and then people started to talk about all these things. They became addicted to talking about what is happening in the politics of France and what they thought should happen. So they made clubs, and they used to go and talk about all of this every day. So there were a lot of clubs, and some of them very famous. So there was a club named Jacobins which became very famous. So people from that club they became very powerful because they were the most famous club. And then they were very angry with the short supplies of food and also the prices going up. So they planned an insurrection, and what they did, they went to the palace of Tuileries, and they massacred king's men, and also they kept him hostage for several hours. And in the end, what happened that with the king Louis XVI, they did execute him publicly, and also same fate happened with the Marie Antoinette. So both of them were publicly executed. That's how the monarchy was abolished and France became a republic. So let's start with session 7. So this session 7 is the reign of terror. So we will see why this is called the reign of terror, what happened in between that time, which is why it is named as the reign of terror. So this period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. So this was a period of 1 year which was considered a reign of terror. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से जो ये पीरियड है 1 साल का, उसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है. जबकि people of France were fighting for so long to bring the revolution, to end all of this, to end the monarchy. So they ended the monarchy, they became a republic. Still we see that there is a reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. So the person who was ruling France, that his name was Robespierre. So we can see in the picture, he was at that time ruling France. So he followed a policy of severe control. तो जो रॉबिस्फियर था वो उसने जब रूल किया तो उसने एक वेरी जो सीवियर कंट्रोल होता है सारी चीज़ों पे, कंट्री के हर चीज़ पे कंट्रोल रखना, उसने ऐसी पॉलिसी को अपनाया. एंड इफ़ समबडी वाज नॉट डूइंग व्हाट ही वांटेड, देन दैट पर्सन वाज पनिश्ड. तो either you do what he wanted or you will be punished for it. So this is how he was ruling. This is how उसको लगा कि अगर कोई मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो उसको पनिश किया जाएगा. तो इस तरीके से फ्रांस में जो ये एक रेन ऑफ टेरर है उसकी शुरुआत हुई. Although
those whom he saw as being enemies of the republic. तो जिन लोगों को भी उसको लगा कि ये रिपब्लिक के एनिमी है, बिकॉज फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, सो वो एक रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड ही वाज रूलिंग एट दैट टाइम. तो उसको लगा कि जो भी ये लोग हैं जो उसकी बात नहीं मानते हैं, उसको ये सारे लोग एक रिपब्लिक के एनिमी जैसे लगने लगे. एक्स नोबल्स थे उसमें एंड क्लर्जीज, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स. तो जो लोग उसको अपने एनिमी लगने लगे वो कौन थे? एक्स नोबल्स थे एंड क्लर्जीज थे. यू रिमेंबर बच्चों, एक्स जो नोबल्स थे और क्लर्जी थे वो कैसे स्टेट में आते थे? यस, याद करिए. यस, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट था, फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जीज एंड सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबल्स. यस, नोबल्स और क्लर्जीज ये आते थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में. तो जो रॉबेस्पियर था उसको ये सारे लोग एक्स नोबल्स और क्लर्जीज ये सारे उसको अपने एनिमी लगते थे. और जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो भी उसको अपने एनिमी लगते थे. इवन जो उसकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके लोग अगर उसकी कोई बात नहीं मानते थे, वो जो एग्री नहीं करते थे, उसके जो ये मेथड्स थे जिस तरीके से वो ये शासन कर रहा था, उसको वो भी अपने सारे एनिमीज़ लगते थे. एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू विद हिज एनिमीज़ वो हम देखते हैं. सो जो भी उसके काम करने के तरीके से जो एग्री नहीं करते थे, दे वर अरेस्टेड, imprisoned एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल. तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था और एक रेवोल्यूशनरी जो ट्रिब्यूनल उसने बनाया था उस पर उनका ट्रायल होता था या उस पर उनका जो एक केस है वो चलाया जाता था. तो आइदर यू आर डूइंग व्हाट ही वांटेड और इफ़ यू डोंट डू व्हाट ही वांटेड, सो ऑल दिस माइट हैपन टू यू. यू माइट गेट अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी जो ट्राइब्यूनल उसका था. इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलिटेंड. सो अगर जो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट करेंगे, देन इम्प्रिजन कर लिया एंड ट्राइब्यूनल भी उसी का है, एंड देन इफ़ द कोर्ट फाउंड जो भी ये लोग हैं गिल्टी उनको फाउंड करते थे तो गिलिटिन्ड होते थे. एंड दिस इज़ द पिक्चर वेयर इट शोज व्हाट इट मीन्स टू बी गिलिटिन्ड. तो दिस इज़ लाइक अ पब्लिक एक्सिक्यूशन. यू कैन सी इन द पिक्चर कि लोगों को पब्लिकली एक्सिक्यूट किया जा रहा है. एंड पुराने ज़माने में दिस वॉज वेरी कॉमन टू पब्लिकली एग्जीक्यूट पीपल. सो लेट्स सी जो गिलिटिन है वो क्या था और हाउ पीपल यूज टू गो अबाउट इट. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. तो जो गिलेटिन है इट्स अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड उसमें एक ब्लेड होता था जिसके साथ एक जो पर्सन है उसको बीहेडेड किया जाता था. तो उसका जो सर है वो काट दिया जाता था, उसको बीहेड कर दिया जाता था. तो ये एक डिवाइस थी जो जिसको बनाया था, इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलेटिन. तो इन्होंने इस डिवाइस का इन्वेंशन किया था और उन्हीं के नाम पे फिर इसको गिलेटिन नाम की डिवाइस का नाम रख दिया गया था. तो दिस इज़ द वे कि जिससे लोगों को बीहेड किया जाता था और उनको जो एग्जीक्यूशन है वो पब्लिकली इसे दिया जाता था. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी उसने लॉज इशू किए जिसपे उन्होंने मैक्सिमम सीलिंग लगा दी वेजेस पे. तो जो लोगों के वेज होंगे, जो डेली वर्कर हैं या पीजेंट्स हैं, उनके जो वेजेस होंगे उन पे उन्होंने एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि इससे ज़्यादा वो वेज नहीं बढ़ सकते हैं. एंड ऑल्सो प्राइसेस, तो जो चीज़ों के प्राइसेस हैं, जो मर्चेंट्स हैं, फिर वो किसी चीज़ के प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं बिकॉज देर इज़ अ मैक्सिमम सीलिंग. सो वी कैन सी कि एवरीवेयर ही वॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग. आइदर यू आर डूइंग व्हाट ही वांटेड, अदरवाइज उसने लॉस बना दिए, सो you have to do what he wanted or else you will be imprisoned, you will be go in the court of law जहाँ पे आपका public execution भी हो सकता है. So we can see कि a lot of things were happening and जिसकी वजह से इसको एक reign of terror बोला जाता है. मीट एंड ब्रेड वर राशन. तो जो मीट और जो ब्रेड है, एंड ब्रेड वी आर सीइंग थ्रू आउट दैट जो ब्रेड है वो फ्रांस का स्टेपल डाइट था.
तो इवन जो ब्रेड है एंड मीट है जो कि स्टेपल डाइट है उसको भी राशन किया जा रहा था कि यू कैन नॉट गेट इट मोर देन जो लिमिट उन्होंने लगाई है उससे ज़्यादा आपको ये नहीं मिल सकता है। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। तो जो peasants थे जो खेतों में काम करके अपना ग्रेन को पैदा करते थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो जो अपना ग्रेन है उसको लेके सिटीज़ में जाएं और वहाँ पे जाके सेल करें एंड दैट टू एज एट अ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स किया है उस पे ही वो उसको सेल कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन। तो जो ज़्यादा एक्सपेंसिव जो वाइट फ्लावर है जो कि ऑल पर्पज़ फ्लावर भी बोलते हैं उसको उन लोगों ने उसका जो यूज़ है उसको फॉरबिडन कर दिया था, उसको लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। तो किस तरीके से एवरीथिंग वाज गेटिंग कंट्रोल फॉर एवरीबडी। Instead of the traditional monsieur and madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne। तो जो ट्रेडिशनल फ्रेंच में एक सर एंड मैडम को बोला जाता है वो भी चेंज करके एक अलग ही तरीके से उनको बोला जाने लगा, उनको सिटोयन मीन्स सिटीज़न बोला जाने लगा सबको। तो इस तरीके के भी चेंज बहुत सारे हुए कि आपको जो एक लोग बुलाएंगे उसमें भी एक डिफरेंट तरीके से वो बुलाएंगे और जो नॉर्मल तरीका है इन द फ्रांस विच वॉज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स उसको भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices। तो जो चर्चेस थी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उनको भी बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया, आइदर बैरक में कन्वर्ट कर दिया गया और जो ऑफिसेज हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो लोग हैं एक तो वो पहले से ही इतने परेशान हैं, ऊपर से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको भी बंद कर दिया जाए तो इट विल एक्चुअली बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। तो जो रॉबेस्पियर है उसने जो उसकी पॉलिसीज़ थी उसको इतने ज़्यादा उसने जो वो चाहता था वही उसने किया और जो एक बार उसने पॉलिसी बना दी वो उस पर ही चलना चाहता था। तो इतना ज़्यादा वो हो गया मुश्किल लोगों के लिए कि इवन जो रॉबेस्पियर के सपोर्टर थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे they also wanted for him to just do it with moderation। मीन्स उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन करें, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाएं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इतना ज़्यादा हार्श ना हो लोगों पे, जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा वो रिविजिट करें और देखें कि उसमें कहाँ लोगों के लिए थोड़ा सा वो जो है वो लीनियंट हो सकते हैं। तो इवन जो उनके सपोर्टर हैं वो भी ये सब उनसे अब बोलने लगे थे। Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine। So finally क्या हुआ कि he was convicted by a court। कोर्ट ने उनको finally जुलाई 1794 में convict किया because the reign of terror was only for a year, so 1793 से 1794 तक। तो उनको फिर अरेस्ट किया गया एंड ऑन द नेक्स्ट डे उनको सेंड कर दिया गया गिलेटिन के लिए। और गिलेटिन क्या होता है कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनको बी हेडेड कर दिया जाए। तो एंड में जो क्या हुआ कि सेम थिंग जो वो उन्होंने एक शुरू करी थी कि लोगों को बी हेड करते थे वो चीज़ उनके साथ एंड में खुद भी हुई और उनका जो एक राज्य था जो रेन ऑफ टेरर था दैट्स हाउ इट एंडेड। और लोगों के लिए जो मुश्किलें थी वो जो रेन ऑफ टेरर का टाइम था वो इस तरीके से एंड हुआ। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस सेशन। सो हम लोगों ने इस सेशन में देखा जो रेन ऑफ टेरर था वो क्या था और उसका टाइम पीरियड क्या था। वो स्टार्ट हुआ 1793 से एंड इट एंडेड इन 1794। और उस टाइम जो रूलर थे वो थे रॉबेस्पियर और वी हैव सीन कि हाउ ही यूज़ टू रूल। उन्होंने कितने सारे जो उनके रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रूल बनाए उन्होंने लोगों के लिए। एंड ऑल्सो पीपल वर गिलेटिन्ड, दैट मीन्स लोगों को बीहेड भी किया जाता था, पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था। और इफ़ नोबडी वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिम उनको इम्प्रिजन करते थे, अरेस्ट करते थे। एंड ऑल्सो कोर्ट ऑफ लॉ में जो उनका रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल था उसमें उनका
केस चलाया जाता था. तो दिस वॉज द रेन ऑफ टेरर. सो दिस इज ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू.